આનું નામ છે આખું જ ગામ ને? હા, શું કહ્યું? આખું જ ગામ ને? યા યા, હજી ટાઈમ છે આપણી પાસે. હમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજન નીરઢ મને લાગી. દાદા ભજન નીરઢ મને પીરસ માનાવું છે. ભક્તિ રસ માનાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. સદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાજી મારે ખાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું
અમૃત પાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કરિશ્મા નવ કલમ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભે ના દુભાય કે દુવા પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો અહમ ના દુભે એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વતન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. શ્રેયા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવે કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વર્તન, સાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધु, साध्वी के आचार्य अवर्णवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના ભૂલી જાય, ના ભૂલવાઈ જાય કે ભૂલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુરુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ વગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધિત કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, કોઈ પણ રસમાં લુગ્ધમાન પણ ન કરાય એવી શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલાનો કોઈ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. દીપકાજી 3 મંત્ર. નમો વીતરાગાય, નમો નમો વરિહંતાણમ, નમો વરિહંતાણમ, નમો વિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરીયાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો સવસાહુણમ, એસો પંચન મુખારો, એસો પંચનમુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સૌ પાપનાશ, મંગલાણં ચ સૌવેસિં, મંગલામ પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રેયા. શ્રેયા daily prayer. શ્રેયા. डेली Yeah. प्रेयर. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन
मुझे मेरे हृदय को ज्ञान की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का युग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी तुझे मात्र सेवा के लिए करूं। साथ अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास करते निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे की माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे मन तांत्रिक शक्ति प्रदान कर दीजिए। करिश्मा, स्टडी प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी आवश्यक संसाते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी शक्ति दीजिए। पिताक्षीबा, हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे सकती। दक्ष, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हाँ, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हमें आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के हैं के सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। दक्ष, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। पिताक्षीबा, हाँ जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દક્ષિબા જુદા છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દક્ષિબા રિલેટિવ છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દક્ષિબા ટેમ્પરરી છે। okay, very good. गईकाल ऐसे मोनिका, are you there? हाँ, Okay, कल किसी आपसे बात किया था मैं करिश्मा के साथ। मैंने कल बात नहीं की और आज भी नहीं की। आज किया था बात कि कल क्या नहीं हुआ, कल क्या हुआ था उसको। नहीं, इसमें कुछ नहीं पता है मुझे। आपको ड्यूटी है पूछने का। ओके, कल ऐसा था कि आपने वेकेशन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या स्टडी किया, क्या ग्रहण किया, बताइए। मैंने अपनी गलतियों की स्टडी की थी। मेरी गलतियां और मेरी आर्ग्यूमेंट ज्यादा मम्मी के साथ होती है, मुझे उसे कम करना है। और जितनी बार मैं दादा से भी शक्ति मांगती हूँ, फिर भी वो गलती दोहराती है। प्रतिक्रमण भी मैंने किया था। ओके, दूसरा क्या हाँ, आप अभी तो दादा, कैसा कैसा रहा आपको मम्मी के साथ वेकेशन में। वेकेशन में तो मैंने बहुत ट्राई किया, मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट मैंने कुछ नहीं की। बट मम्मी को मेरी जो हैबिट्स थी, काम नहीं करती थी, तब गुस्सा आता था। उसमें गलती होती थी। नाना के घर जाते काम नहीं करते थे, कैसे चलता है। काम करनी थी नहीं, मैं वहां पर एडजस्ट नहीं होती थी, कुछ भी कहते थे। क्यों। मुझे उस समय जब एडजस्ट होने का आता है तब गुस्सा आ जाता है, और मैं ऐसे भी कुछ मना कर देती हूँ तब होता है।
ओके, दूसरा क्या? क्या कहा? खेत में गई थी? दादा आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। खेत में गई थी आप? हाँ, हाँ, तो नाना के खेत, उसमें क्या नाना के देखा? खेत क्या में क्या उगा? व्हाट इज ग्रोइंग देयर? ऑनियंस, टमाटर, चेरी टोमेटोज, ब्रिंजल, पपीता और वो सूप और पुदीना, मिंट लीव्स और आम और अमरूद, जामफल और गाय के लिए चारा। ये सब का फोटो लेके आई है कि सबको दिखाने के लिए? नहीं, मैं बस पीकॉक और कबूतरों की फोटोज लेकर आई हूँ। इसका? पीकॉक और और पीजन। पीको किसने नहीं देखा है? नहीं, मेरे यहाँ श्रेया, बस श्रेया, देखा है। सबने देखा है। अम्बा का झाड़ किसने नहीं देखा है? सबने देखा है। हाँ, श्रेया ने नहीं देखा। तो ये जब बाहर जाते हैं तो फोटो इसके लेते हैं तो सबको दिखाने का। देखो, अनियन अनियन का प्लांट श्रेया ने नहीं देखा, हिताक्षी ने नहीं देखा। हाँ, ये सब ऐसे है, ये करने का है। तो वो दूसरा कैश क्रॉप में क्या होता है? कैश ओके, क्रॉप में सौंफ उगती है। क्या? उसे सोम? हम मारवाड़ी में बिराली, हाँ, बिराली बोलते हैं। वो हाँ हाँ। कैश क्रॉप है और कॉटन है। किसने देखा है सोम का झाड़? श्रेया ने तो कुछ नहीं देखा है। हिताक्षी आपने? नहीं नहीं। तो अभी कोई उधर है तो उसको बोलने का सबका पिक्चर हाँ लेके एक दिन शो करने का है। हाँ, ठीक है दादा। या ये आप लोग बाहर जाते तो कुछ नहीं करते। ओके ओके। कल का अभी हसमुख काका, હા તમારા બધે અવાજ આવે છે. મારે ત્યાંથી હા હા હા, હવાનો અવાજ આવે છે. દીપકાનજી, I'll turn it off. Okay, fine. હસમુખાનજી માંથી આવે છે ને? હા, હસમુખાનજી તમારામાં આવે છે. મારામાંથી આવે છે એમ? હા, કઈ મશીન ચાલે છે આસપાસ? આ પંખો ચાલે છે ને એસી ચાલે છે જોઈએ. ઓકે ઓકે, પંખો થોડો ઓછો કરી નાખો ને. હવે ફરક પડ્યો? हाँ हाँ, यस यस। ओके, तो ये वेकेशन में उन लोगों ने क्या स्टडी किया, क्या ऑब्जर्व किया, उसकी बात चल रही है। स्टडी की बात नहीं चलती है। ओके, तो कल हम ओके श्रेया, आपको क्या होमवर्क था? अभी वॉइस चला गया उसका। क्विज में आपका क्या होमवर्क था? कुछ नहीं था। आई थिंक वो हरी हिताक्षी का था। हिताक्षी बा का? हाँ, होमवर्क ये था कि मुझे प्लांट्स की साइज मेजर करनी है और मनी प्लांट के बारे में जानना, लेकिन आज मैंने नहीं किया था वो। तो कैसे उसको अच्छी तरह से पालेंगे? मैंने नहीं किया था होमवर्क आज। तो क्यों प्लान क्यों लेके आते हैं तुम? अभी तो वेकेशन है। यू शुड नो कितना लाइट मांगता है, कितना वाटर देने का है। ओके श्रेया, आपका वॉइस नहीं है। ओके दक्ष, हाँ, आपका क्या होमवर्क था? शिविर में एक चीज क्या लेके आया कि आपका वीकनेस में आपको फायदा होगा?
मुझे वीकनेस में, हाँ मेरी ये वीकनेस थी कि मैं कभी कभार मम्मी के पैर नहीं पड़ता था, और अब मैं जब से हूँ सत्संग से आया हूँ मैं डेली मम्मी का पैर पड़ता हूँ। ओह वेरी गुड। तो अभी आप सत्संग में अभी कंटिन्यू करने का है कि खाली वेकेशन के, ओनली वेकेशन के लिए है? कंटिन्यू करना है। वेरी गुड। आपको हसमुखा का इतना तो फायदा हो गया। ओके श्रेया, ના તારું સાઉન્ડ નથી આવતો. ओके, तब तक थोड़ा एजुकेशन की बात करेंगे, रियल एजुकेशन स्कूल का. ओके, हम इताक्षी इताक्षी बा और मोनिका का रिजल्ट आ गया हमारे पास. करिश्मा तो पास हुए, नो डिटेल में मिला करिश्मा? नहीं. मीटिंग में नहीं गई। ओके, लक्ष्य आपका रिजल्ट कैसे आया? हाँ, दादा मेरे 58% बने हैं। ओके श्रेया? मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है, तो अभी तक नहीं मिला? मतलब मिला है पर मैं बाली में थी तब अटेंड नहीं किया था। वो तो वो लोग भेजते नहीं है पापा मम्मी को? तो जून में मिलेगा। स्कूल में जाके लेने का होता है? हाँ, ओके ओके, बोलो आपका होमवर्क क्या था? वो मुझको सोवेनियर्स बताने थे। तो बताओ. बाहर है मम्मी के पास। तो आपको ये सब वेकेशन में सब चलता है ना? प्रिपेयर नहीं, मम्मी मम्मी क्या करते हैं उसके साथ? मम्मी को चाहिए था आज कुछ था पर अभी घर पे नहीं है, अभी बाहर गए। ओके 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 ओके. ओ एक मैं भूल गया कल पूछने का है कि इंडोनेशिया, अपने सॉरी बाली कौन सा कंट्री में है, किसको मालूम है? श्रेया? बाली इंडोनेशिया में। ओके वेरी गुड. और कितना टाइम लगता है? आप कैसे फ्लाइट, कैसे किधर से कैसे गए थे? मैं जाने के वक्त मेरा हांगकांग पे स्टॉप था, फिर वहां से किधर से, इंडोनेशिया। किधर से आपको फ्लाइट हुआ, स्टार्ट हुआ? दिल्ली से, बॉम्बे से. अहमदाबाद से? अहमदाबाद अहमदाबाद। ऐसे बोलो ना. हम अहमदाबाद में बैठे थे, बाद में हांगकांग गए थे. बोलो बोलो जल्दी जल्दी, नरेशन दो. और हाँ, और फिर हांगकांग से कनेक्टिंग फ्लाइट इंडोनेशिया तक थी। बाली और स्ट्रेट बाली के जकार्ता गए थे? नहीं, स्ट्रेट नहीं, हांगकांग पे स्टॉप लेके किधर हांगकांग से किधर गई थी? हांगकांग से इंडोनेशिया बाली। हाँ तो इधर बाली बोलो ना, डायरेक्टली बाली ने. ओके, कितना घंटा लगता है? 9 आवर्स जितना होता है, 9-10 आवर्स। अहमदाबाद से हांगकांग कितना होता है? 4 आवर्स की फ्लाइट थी। और हांगकांग से बाली 5 आवर्स. ओके, और वापस कैसे हाँ, आए आप? वापस वियतनाम पे स्टॉप था। वापस कैसे आए हमने पूछा. अ, बाली से वियतनाम और वियतनाम से अहमदाबाद। वियतनाम तो कंट्री होती है, सारी कंट्री में घूम के आए? नहीं, वो एरिया का नाम नहीं पता। क्या आप लोग फ्लाइट में अनाउंस करते हैं कि नहीं करते कि करते हैं। यू आर ड्रॉपिंग डाउन इन दिस? ये करते देखो, हैं पर आप when you are on vacation, when you are traveling,
Okay, you should be paying attention and grab all the information. Okay, Itaxiba, बाली इंडिया के वेस्ट में है कि ईस्ट में है? नहीं मालूम। कल वेस्ट में, कल ज्योग्राफी वेस्ट में ना। हाँ, यू आर राइट। तो कल ज्योग्राफी में देखने का कि हांगकांग और बाली किधर है, राइट? मैंने कल ही देखा। आई नो, इसलिए तो ये अपन सत्संग करते हैं तो एजुकेशन भी होता है ना। हाँ, एक ज्योग्राफी का मैप लेके देख लेगा। ओके करे जो कल दिखाना हाँ हमको। हमको कुछ आता नहीं है, आपको लोग को हमको सब पढ़ाना मांगता है। ओके ओके, हसमुखा का अभी बातें करो। ये इन लोग जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन नहीं करते, कुछ नए सीखना। मैंने श्रेया को बोला एक एक शब्द भी इंडोनेशियन लैंग्वेज का नहीं आता है। ओ श्रेया, ओ लैंग्वेज इन इंडोनेशियन लैंग्वेज क्या मालूम है? मालूम है? भाषा, हाँ, हम लोग भाषा बोलते हैं। हसमुखा का that language is भाषा in इंडोनेशिया। बोलो दूसरा। श्रेया क्या बोलती थी आप? नहीं कुछ नहीं, आप होटल में रहते तो सब इंग्लिश बोलते थे, हिंदी बोलते थे? इंग्लिश। तो आपने पूछा नहीं गुड मॉर्निंग का क्या होता है? ये देखो ये। ओके, हसमुखा बोलो ना, आप जब बाहर जाते तो क्या करना मांगता है, क्या नहीं करना मांगता है? हाँ, तो जब आप बाहर जाते हो तो पहले वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, वहाँ जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो उनको यूज रहते ज्यादातर यूज करते हैं, उनका थोड़ा मतलब हमको समझ लेने का है। तो वहां जाके हमको किसी से भी कम्युनिकेट करना हो तो बहुत आराम से हम कर सकते हैं। और हमारे उससे क्या होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है और हम किसी से भी अच्छी तरह से हम कम्युनिकेट करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, बाली में क्या देखने का था वो तो मेरे को मालूम नहीं है। क्या देखने का था उधर ज्यादातर? वहाँ ज्यादा कॉफी प्लांटेशंस थे और उनके जो लाइक पेंटिंग्स और एग्रीकल्चर वो देखना ज्यादा। एग्रीकल्चर ज्यादा था। हम्म। कॉफी कॉफी का वहाँ पूरा बगीचा ज्यादा होगा। हाँ, कॉफी का ज्यादा। बरोबर, अलग अलग टाइप की कॉफी रहती है। हाँ, बरोबर है। ओके ओके, तो आपने क्या देखा उधर? कितने कितने स्टाइल की कॉफी रहती है? अरे कॉफी का क्या है, कुछ टेस्ट किया? टेस्ट हाँ किया था। बरोबर है। तो बताओ ना कितने कि आप प्लांटेशन में गया था तो क्या किया नहीं, क्या सब देखा बोलो। उधर? और उधर से हमको इधर क्या काम लग सकता है, इंडिया में हमको क्या काम लग सकता है? वहाँ की अच्छी अच्छी बातें कौन सी थी? बरोबर है, वो जरा बताओ आप। वहाँ आपको क्या अच्छा लगा? अ, वहाँ का वहाँ के जो लाइक कल्चर थी, कल्चर ट्रेडिशन वो ज्यादा मुझको अच्छा लगा। अच्छा। और कल्चर का म्यूजियम था? नहीं, म्यूजियम। हाँ, म्यूजियम था वो। आप म्यूजियम में गए थे? हाँ, कौन सा म्यूजियम का नाम क्या था? नाम कुछ वो लैंग्वेज में लिखी हुई थी, पढ़ा नहीं। क्या था म्यूजियम में, क्या था? उसमें ज्यादा लाइक वो स्कल्पचर्स और लाइक आर्टिफैक्ट्स आप और कल्चर कल्चर पेंटिंग बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं तो कल्चर का मीनिंग क्या होता है? लाइक की जो ट्रेडिशन होती है, लाइक राइट, कौन सा ट्रेडिशन क्या होता है उन लोग का? उन कॉन्सेप्ट और सोशल बिहेवियर उन की लोग का लाइफस्टाइल। बर्थडे का कल्चर देखा, डेथ का कल्चर देखा, और म्यूजियम में बताया था। गाइड में। ओके ओके, हसमुखा का पूछो। ओके 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 ओके। अच्छा है, चलो। इतने
कुछ तो नया जानने को मिला कि हमारे यहाँ क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ जैसे आदमी है वैसे ही वहाँ आदमी है, वो अपने अलग अलग प्रकार से हमको, या बाहर जब हम घूमते हैं तो ये अलग, हमारा माइंड बहुत ही ब्रॉड हो जाता है। अगर हम एक ही गांव में और एक ही जगह पे रहते हैं तो हमारा माइंड, हमको ऐसा ही लगता है कि भाई यही दुनिया है। लेकिन हम जितना भी बाहर घूमते रहते हैं, तो दादा भगवान भी बाहर घूमते थे, लेकिन वो क्या देखते थे, वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करते रहते थे कि यहाँ ऐसा ये है तो ऐसा क्यों है, ये यहाँ है तो ऐसा क्यों है, वहाँ का कल्चर ऐसा क्यों है। एक सिटी का, हर एक स्टेट का, हर एक देश का कल्चर अलग अलग क्यों है, क्योंकि वहाँ के जो परिस्थिति है उनके हिसाब से वहाँ का कल्चर बन जाता है। बरोबर है। और हम अगर उनका कॉपी करेंगे तो हमारी परिस्थिति अलग है, तो फिर हमारे वो हिसाब से यहाँ चलता नहीं है। लेकिन हर एक देश का उनका उनका वेदर अलग है, उनका रहने का सिस्टम अलग है, वहाँ उनकी सोच अलग है, वो हिसाब से उनका कल्चर बनता रहता है। और हमारी सोच, हमारा वेदर, यहाँ का सब, वो सब डिफरेंट रहता है। वो हमको ऑब्जर्व जितना जितना हम करेंगे तो हर एक देश के हर एक आदमी को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। बराबर, क्योंकि वो वहां के हिसाब से सही है, हम यहाँ के हिसाब से सही है। एक दूसरे के कंपटीशन में हम नहीं आएंगे। वरना क्या होता है कि अगर वो अच्छा लगे तो हमको ऐसा ही लगता है कि यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है, तो वो उनके हिसाब से वहाँ अच्छा है और हमारे हिसाब से यहाँ अच्छा है। तो जितना जितना आप बाहर घूमोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग ट्रैवलिंग करोगे, उतना उतना आपकी आंतरिक जो समझ है वो धीरे 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 करके ब्रॉड होती जाएगी। जितना जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे ना, उतना उतना आपकी समझ है वो बहुत धीरे धीरे करके ब्रॉड होती जाएगी। और ऐसी ब्रॉड होती जाएगी कि हर एक का व्यू पॉइंट आप अपने अंदर संभालोगे। बरोबर है। तो घूमने का, लेकिन आंखें खुली रख के घूमने का। बरोबर है। आंखें खुली, दिमाग भी खुला, हर एक जगह ऑब्जर्व करने का, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है। हम अंदर ही प्रश्न पूछेंगे ना तो वो जवाब मिलेंगे। अगर हमको जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ किसी लोकल से भी हम अपना वो शेयर कर सकते हैं, भाई यहाँ ऐसा क्यों है, ये लोग ऐसे क्यों बैठते हैं, लोग ऐसे क्यों खड़े रहते हैं। बरोबर है। यहाँ इतनी इंडिया में क्यों कॉफी नहीं हो रहा है, तो हम अगर देखेंगे तो हम उसके बाद नॉलेज मिलता जाएगा। यहाँ क्यों इतने सारे लोग इतनी सारी कॉफी पीते हैं, और इंडिया में इतने सारे लोग क्यों इतनी सारी चाय पीते हैं। बराबर, यहाँ आप देखोगे तो सारे लोग चाय पीते होंगे, और वहां जाएंगे तो सारे लोग कॉफी पीते होंगे। बराबर। तो अगर हम जितना जितना लोगों से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो हमको उसके बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी। और ये जानकारी ऐसी है कि हमको कभी भी लाइफ में कहीं भी जाएंगे तो ये जानकारी को काम लगेगी, हमारा माइंड बड़ा करने के लिए। अब माइंड इतना ब्रॉड नहीं होगा, जितना जितना ज्यादा लोगों से मिलते जाएंगे इतना इतना हमारा माइंड ब्रॉड होता जाएगा। बरोबर। और यहाँ का जितना भी अनुभव है ना, वो ज्यादातर हमको लिख के रखने का है कि भाई यहाँ हमने ये देखा, यहाँ हमने ये देखा, यहाँ, क्योंकि आप लिखेंगे ना तो फिर परमानेंट हो जाएगा। अभी आपको हम पूछते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा आपको सोचना पड़ता है। अच्छा मैं यहाँ यहाँ रुकी थी, अच्छा मैं यहाँ रुकी थी, मैं यहाँ गया था। तो थोड़ा थोड़ा वो एक डायरी भी, आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल में भी एक डायरी रखने की साथ में, कि मैं यहाँ गया, हमने ये सब चीज देखा, यहाँ ये सब चीज देखा। वो थोड़ा डायरी में नोट डाउन करोगे ना तो आपको भी थोड़ा थोड़ा पक्का होता जाएगा। बरोबर है श्रेया। ठीक है। हाँ। दीपकांत जी, आपको कुछ क्वेश्चन करने का है इन लोग को? यस यस यस, ऐसा है ना, ये ये ट्रैवल के बारे में जो है ना, हम्म। तो ये बात आई तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम जहाँ भी जाना जा रहे हैं उसका थोड़ा गूगल करके देख लेना चाहिए। अभी जो कुछ हुआ वो ठीक है, अभी आपका वैकेशन है ना श्रेया, हाँ। तो डजेंट मैटर, आप जाके आए, लेकिन फिर अभी उसका थोड़ा होमवर्क कर दो अभी, पोस्ट विजिट होमवर्क, कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, थोड़ा है। तो उससे क्या होता है, पहले तो हम जब ट्रैवल करते हैं तो पहले तो पैसा खर्चा होता है ना। तो ऐसा बताया है
कि जो अपना पैसा ट्रैवलिंग में खर्चा करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत कुछ सीखने मिलता है, इसीलिए वो गुड इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा सही है। नॉर्मली हम जो विजिट करते हैं तो पहले तो बाहर जाते हैं तो हम फ्रीडम एक्सपीरियंस करते कि यू आर फ्री, और आसमान को देखते हैं, स्काई को देखते हैं। इन घर में होते हैं तो स्काई को कभी देखते भी नहीं है, क्योंकि भाग दौड़ होती है ना, स्कूल में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ करके। तो स्काई हमें क्या सिखाता है? स्काई का मतलब क्या है? फ्री। स्पेस। तो ये स्पेस हमें क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड एकोमोडेशन देता है ना, अनलिमिटेड समझ समझ। हमारी जगह पे कोई बैठ जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्पेस है ना, सबको स्पेस देती है। यानी उसको क्या बोल रहे हैं, बोला जाता है, ये स्काई को देखते हैं ना तो हमें हमें इतने वास्टनेस, हमारे हार्ट है ना, इतना वास्ट हो जाना चाहिए कि हम सबको एकोमोडेट करें। हम सबको एकोमोडेट करते हैं? नहीं। नहीं। नहीं करते। तो ये स्काई को देखेंगे ना तो बोले भाई ये स्काई और हमारी बॉडी नेचुरल है कि अननेचुरल है? नेचुरल। नेचुरल है, नेचुरल। लेकिन हम नेचुरली जीते नहीं है। और नेचुरली जीने के लिए ट्रैवल करने का मतलब है विजिट द नेचर, कुदरत में जाओ। तो पहली बात तो ये कि स्काई, तो स्काई फर्स्ट थिंग, अनलिमिटेड एकोमोडेशन। तो हमारा हार्ट सबको एकोमोडेट करे ऐसा धीमे धीमे होता जाएगा। फिर जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम माउंटेन्स को देखते हैं ना, पहाड़ों को देखते हैं ना, कि हाँ। पहाड़ नहीं जाते। तो पहाड़ क्या सिखाता है हमें, माउंटेन क्या सिखाता है? माउंटेन को हिलाने जाओ तो हम हिल जाते हैं कि माउंटेन हिला देते हैं हम? अपन हिल जाते हैं। हाँ, तो माउंटेन को देख के हम क्या सीखते हैं, उनके जैसे स्टेबल। कोई कितना भी हमें हिलाए ना, हमें हिलना नहीं चाहिए। नहीं तो कुछ कोई कुछ किसी ने बोल दिया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। श्रिया, ऐसा होता है कभी? मम्मा ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, फ्रेंड ने कुछ कह दिया, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। होता है ऐसा कभी? हाँ। तो वो माउंटेन, तब हम माउंटेन को कॉन्टेम्पलेट करने का, सोचने का कि माउंटेन हिलता नहीं है तो मैं क्यों हिलूं। और अगर मुझे किसी ने कहा तो मेरी गलती हुई तभी तो कोई कहेगा, सही है? तो वो गलती पर फोकस करके सुधार लेने का, और फिर से हम माउंटेन जैसे स्टेबल स्ट्रांग हो जाते हैं, अनशेकन। कोई हिला नहीं सकता हमें। करिश्मा, पता चला? हाँ। हाँ, फिर हम क्या देखते हैं, रिवर्स को देखते हैं ना, जाते हैं तो कहीं ना कहीं। और रिवर में क्या कहते हैं, रिवर का पानी रुक जाता है कि बहता रहता है? बहता रहता है। तो वो क्या बोलते हैं, ऐसा एक कहावत है, बहता पानी कभी गंदी बात नहीं आती है, लेकिन पानी रुक जाता है ना तो उसमें गंदी बात आनी शुरू हो जाती है। सो कीप फ्लोइंग लाइक रिवर। लाइफ में सिचुएशंस आएगी तो कहीं हमें अटक जाना नहीं चाहिए। ये समझ में आया सबको? हाँ। हम अटक जाते हैं, हाँ। ये मम्मा ने ऐसा कह दिया ना, अब मैं ऐसा नहीं हाँ। करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बहुत अपसेट हो गया। अरे उसमें अपसेट क्या होने का? सो कीप फ्लोइंग लाइक रिवर, फ्लोइंग वाटर नेवर स्टिंग्स, ऐसा बोला जाता है। क्या बताया? Flowing water never stay. फ्लोइंग वाटर नेवर स्टिंग्स। तो हमें इस तरह से जीवन में बहते रहना है। कहीं अटक गए ना तो बदबू आएगी हमारे अंदर से ही, यानी यू विल फील डिस्टर्ब, और आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। करेक्ट? फिर हम ओशंस को देखते हैं, रिवर, ओशन फ्रंट,
वो बाली में ओशन था? बाली में नहीं, लेक्स थे। हाँ ओशन इंडोनेशिया में ओशन नहीं है? हाँ था। हाँ हाँ। ओशन से क्या सीखने मिलता है? ओशन में कितना भी रिवर आके फ्लड वाटर डालता है अंदर, ओशन अपनी सीमा उल्लंघन करती है, यानी नहीं ओशन नहीं। नहीं, कभी भी नहीं करता है। तो इसीलिए हम इतने स्ट्रांग एंड स्टेबल हो जाए ना, कोई कितना भी हमें उबालने की कोशिश करे, लेकिन हम उबलेंगे नहीं। हम चावल थोड़ी है, पानी थोड़ी है कि उबल जाएंगे कभी कभी। कभी आप लोग उबल जाते हो? गुस्सा आ जाता है हाँ कभी कभी? हाँ, हाँ। तो करिश्मा को तो नहीं आता है गुस्सा। आता है। हाँ, तो अभी ऐसा ओशन को याद करने का गुस्सा आता नहीं है कि क्या उबलते हो ऐसा। हम उबलते पानी थोड़ी है कि कभी भी उबल जाए। ये ओशन और स्टेबिलिटी, सेरेनिटी, कितना एकदम ठंडा, बिल्कुल हिलने का नहीं। फिर आता है हिस्टोरिकल प्लेसेस, नहीं आते हैं? जैसे पैलेस होता है, फोर्ट्स होता है, कैसल्स होता है, और म्यूजियम। मे बी वॉर वॉर जहाँ वॉर हुई होती है वो जगह होती है। तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हमें हिस्ट्री सिखाती है कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। वो कुछ अच्छा भी हुआ होता है, कुछ बहुत बुरा भी हुआ होता है। तो हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है, क्या सिखाती है कि हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहिए। जो हिस्ट्री में बैड थिंग्स बहुत हुआ होता है ना। हाँ आप तो हिस्ट्री पढ़ते हो ना, सोशल हाँ स्टडीज। हाँ, तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जाने के पीछे क्या है कि हमें पता चलता है कि यहाँ क्या हुआ था। और हमें ये सीखना चाहिए कि ये जो गलत हुआ था ना, वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, सो दैट हिस्ट्री नेवर रिपीट। लेकिन इंग्लिश में कहावत है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। सुना है ऐसा? हाँ। हाँ, तो अभी हमें हिस्ट्री नहीं रिपीट करने का है। वो हमारी विजडम होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। एक बार गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अभी वो गलती रिपीट ना हो, उसके लिए दादा की समझ से हमें जीना है। तो ये समझिए ट्रैवल करने में कितना फायदा है। स्काई, माउंटेन, रिवर, ओशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस। ख्याल में आया? सो पीपल स्पेंड मनी इन ट्रैवलिंग बिकॉज दे गेट टू लर्न एंड दे कनेक्ट विद द नेचर। नेचर से, प्रकृति से हम फिर से जुड़ जाते हैं। और ऐसा बोला है कि अगर रिवर ओशन पे जाओ ना, तो नीचे मिट्टी में बैठ जाना चाहिए। बोले मिट्टी में क्यों बैठना चाहिए पता है? क्यों बैठना चाहिए? मिट्टी में बैठने के पीछे की समझ यह है कि हमें मिट्टी याद दिलाती है कि आखिर में मिट्टी में मिल जाने वाले। डर नहीं गए ना? मिट्टी में मिल जाने का मतलब क्या है कि उसको, उसका हिसाब भुला जाता है कि वो हमारी औकात याद दिलाती है। हम कितने भी अचीवमेंट करें, कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, आसमान में नहीं उड़े। अपनी औकात में आने का, यानी आखिर में तो मिट्टी में मिल जाने वाले। तो बोले सागर यानी सी शोर जाओ तो वहां मिट्टी में बैठ जाओ एक बार। एक समझ में आया? हाँ, ये सब है ट्रैवलिंग का बेनिफिट। और जब जब जाना होता है, जब जब कोई भी स्कोप होता है, तो वो समझ लो आप। हाँ, जय सच्चिदानंद। या ये नॉट नेसेसरीली फॉरेन का, ओके। आप अहमदाबाद के बाहर जाता है तो भी वो ट्रैवलिंग ही होता है, ओके। और जामनगर की बाहर जाते हैं तो भी, ये अभी करिश्मा भी ट्रैवल करके आई है, अक्ष भी ट्रैवल करके है, ओके। सो इट इज नॉट नेसेसरी के ओवरसीज जाएगा। और कल बताना कि हांगकांग में कितना ओशन है, तो कौन सा नाम है, बाली में कौन सा ओशन नाम है, ओके। हमको इंडिया में सब कितनी तरफ ओशन है पता है ना? क्या बोला? हाँ
India is surrounded by how many oceans? Three sides. Three ocean. तो वो सब Arabian Sea, वो Bay of सबको मालूम है Bengal. क्या नाम है थी इंडिया का ओशन आसपास किसको मालूम है And Bay of Indian Bengal. Ocean. बे ऑफ बंगाल ओशन नहीं बोला जाए ओके बोले विताक्षी बा Bay of Bengal, Indian Ocean, Arabian Sea. नहीं सुनाई देता है ओके एनीवे वेरी गुड और एक चीज भूल गया टाइम हो गया है तो अभी कल श्रेया कल बताना कि आपने खाना क्या खाया था सारा वीक कल बताना हमको ओके जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. क्योंकि हम हंसू का हम तो बाली गए हैं, इसलिए हम सब पूछते हैं अच्छा हाँ तो श्रेया को पहले बता देना चाहिए ना क्या क्या देखने का है। वो पूछेगा तो मालूम पड़ता है ना हाँ तो हमने बताया था उसको उनको पता नहीं था कि ये उधर जाने वाले हैं बाली। वो नहीं हमको मालूम अच्छा था वोल्केनो उधर रहता है हुआ था तो उसका क्रेटर है तो हमने बोला था उसके जाओ जब हम गए थे ना तो उसका गाइड हम ट्रिप लिया था तो उसका गाइड के कंप्लीट महाभारत ट्रैवलिंग में कंप्लीट महाभारत का स्टोरी और रामायण का स्टोरी है सबको उसमें अमेरिकन था ब्रिटिश था सब था तो दे ही टोल सबका रामायण महाभारत की स्टोरी वो बताता गाइड ने बताया उधर अच्छा। उधर अपना हिंदू कल्चर ना बाली हाँ ओके